Good morning everyone. Today I am going to discuss about the statistical series which is based on class 11. Before starting the statistical series, we will discuss about some important term related to the statistical series. Here is the first term in the statistical series. So regarding to the definition of the statistical series, if the data arranged in a systematic or proper order, such as according to the size, according to the population, so this type of the data is called the statistical series. Here is the some important term related to the statistical series. First term is the variables. So here is the variable. There are the two types of the variable. First is the discrete and second is the continuous. So variable means it can be changed according to the time period. Variables refers change according to the time period, and it represents quantitative character in item, and variable must be expressed in numerically unit such as weight, age, income, and so on. The first types of the variable is the discrete variables, and second is the continuous. So here is the discrete variables refers if the variable has not in a range, means if the variable are the finite, suppose that 10, 20, 30, 40. Marks given of a student is, suppose that marks given by a student 10, 20, 30, 40. This mark is a exact value. Here is not in the range, and this value is finite. Means this value is the exact value. So here is this type of the series is called the statistical series. Next one is a continuous. If the series in order in the range, in the continuous series, the series in the form of the range. Suppose that the marks of given 10, 20, 30, 40. This series in the form of the range means here is the marks given by a student from 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. So this type of the series is called the continuous series. Means this type of the series expressed in the range. So this type of the series is called the continuous series. Next one is the attributes. Attributes refers the quality of an item, such as honesty, beauty, and so on. So attributes refers the quality
of an item is called the attributes. And next one is the population. Next one is the population. Population refers to the data set in a single form. That is called the population. Next topic is the types of the statistical series. So here is the three types of the statistical series. First is the individual, second is the discrete, and third is the continuous. So we will discuss about the types of the statistical series one by one. So let us start the first types of the statistical series is the individual series. जहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो टाइप्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज है कितने तरह से सीरीज होते हैं, तो फर्स्ट है इंडिविजुअल, सेकंड है डिस्क्रीट है, थर्ड है कंटीन्यूअस। तो इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एग्जैक्ट होती है, यानी फाइनाइट होती है। अगर जो यहाँ पे हम जो 5 स्टूडेंट के मार्क की बात कर रहे हैं कि 5 स्टूडेंट किसी भी एग्जाम में अगर जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, सीरियल नंबर एंड मार्क्स, 5 स्टूडेंट फर्स्ट 40 50 मार्क्स 60 30 एंड 80। तो इस तरह का जो सीरीज होगा ये क्या होगा, इंडिविजुअल सीरीज। जहां पे इस सीरीज में जो स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनका जो मार्क्स है वो क्या है, एग्जैक्ट है, यानी फाइनाइट है। यानी फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसका मार्क्स 40 है, सेकंड स्टूडेंट उसका मार्क्स 50, थर्ड स्टूडेंट जो है 60 है, एंड फोर्थ का मार्क्स 30 है, फिफ्थ का मार्क्स जो है 80। तो यहां से देखते हैं कि जो मार्क्स है हर एक स्टूडेंट का ये क्या है, फाइनाइट, यानी कि जो उसके मार्क्स दिए गए हैं वो क्या है, एग्जैक्ट है। तो इस तरह का जो सीरीज होता है ये क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर? तो यहां से जो इंडिविजुअल सीरीज क्लियर हो गया कि इंडिविजुअल सीरीज में जो मार्क्स गिवन होगा, यानी कि हर एक स्टूडेंट के मार्क्स क्या है, सेपरेट है और उसकी वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट है। तो यहां से जो एवरी स्टूडेंट है उनका मार्क्स क्या, फाइनाइट, यानी कि जो इंडिविजुअल सीरीज होगा उसको हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड पे। तो इंडिविजुअल सीरीज क्लियर है कि जो इस सीरीज में जो वैल्यू होगी, डाटा होगी, वो क्या होगी, एग्जैक्ट, यानी फाइनाइट होगी। नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में यहां डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में जो डाटा होता है मेजरेबल होता है। मीन्स डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं कि ग्रुप बना देते हैं। तो यहां से मार्क्स ले रहे हैं, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे मार्क्स है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 70 60 30 40। ठीक है, जहां पे हमने मार्क्स ऑब्टेन किया और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, अगर जो इनको हम ग्रुप में बना देते हैं कि 50 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 3 2 1 5 4 6। क्लियर? यहां से जो डिस्क्रीट सीरीज है क्लियर है कि हमें अरेंज कर दिया एक ग्रुप में। यहां ये जो है एग्जैक्टली मेजरेबल है, इसको मेजर कर सकते हैं।
ये क्लियर है कि थ्री स्टूडेंट का जो मार्क्स है कितना 50, 2 स्टूडेंट का मार्क्स 70 है, 5 स्टूडेंट का मार्क्स 60 एंड 4 स्टूडेंट का मार्क्स 30 और 6 स्टूडेंट का मार्क्स 40। तो इस तरह से जो स्टडी का सीरीज होगा ये क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज। यानी इसमें हम जो डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ग्रुप में बना रहे हैं, और जिससे हम क्या करते हैं, ये एग्जैक्टली क्या होती है, मेजरेबल, जिससे हम मेजर कर सकते हैं, एग्जैक्ट रूप से मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल सीरीज होगा, डिस्क्रीट सीरीज होगा। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्लियर है कि जो यहाँ पे डाटा होगा आपका एग्जैक्टली मेजरेबल होगा। जैसे यहाँ पे हमने जो डिस्क्रीट सीरीज है, इस डिस्क्रीट सीरीज में दिखा दिया कि जो डाटा का हमने ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप बना दिया, और यहाँ से क्लियर हो चुका है कि 3 स्टूडेंट का जो मार्क्स है 50, 2 का 70। तो यहाँ से क्लियर हो चुका है कि 3 का 50, 2 का 70। तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली मेजरेबल होगा। अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट कंटिन्यूअस सीरीज पर। तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि जो डाटा होता है क्या होता है, एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं होता, मीन्स कंटिन्यूअस सीरीज 0 to 10, 20, 30, 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 to 10, 2, 3, 6 and 8। इसको मान लेते हैं, यानी टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 20। क्लियर। अगर 20 स्टूडेंट का जो हमने मार्क्स कंटिन्यूअस सीरीज में रखा है, तो कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, यानी यहां पे जो सीरीज होगा इसमें एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं होता, यानी कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसका मार्क कितना है। जैसे यहां पे देखते हैं कि 0 to 10, तो 0 to 10 मार्क्स नंबर ऑफ द स्टूडेंट 2। क्लियर है। यानी अगर टोटल जो 20 स्टूडेंट हैं, यहां देखते हैं 20 स्टूडेंट, क्लियर, टोटल 20 स्टूडेंट। इस 20 स्टूडेंट में 0 to 10 2 स्टूडेंट, 10 to 24 स्टूडेंट and 20 to 36 स्टूडेंट and 30 to 48 स्टूडेंट। मीन्स 0 to 10 मार्क्स के बीच जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं, 2 हैं। यानी 2 स्टूडेंट 0 से 10 के बीच पाएंगे। 4 स्टूडेंट का जो मार्क्स है ये 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच मतलब 11, 12, 13, 14 कोई भी नंबर हो सकता है। 20 से 30 के बीच 6 स्टूडेंट है, तो 20 से 30, 21, 22, 24, 25, यानी कोई भी मार्क्स 20 से 30 के बीच इस 6 स्टूडेंट को मिल रहा है। मीन्स यहां से 20 से 30 के बीच कोई भी मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं 6 स्टूडेंट। तो यहां से क्लियर हो गया कि किसी भी स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो एग्जैक्ट यानी एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं, यानी एग्जैक्ट हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं कि इस स्टूडेंट का मार्क्स फाइनाइट यानी कि इतना मार्क्स है, जैसे 21 है, 22, यानी कि इनके बीच ये क्या होगा, रेंज है, ठीक ना। 30 to 40 इनके बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 8। अब ये क्लियर हो चुका कि 8 स्टूडेंट का जो मार्क्स 30 से 40 यानी 30 से 40 के बीच 31, 32,
से लेके जो 39 तक ये 8 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अब किसी स्टूडेंट का मार्क्स कितना है ये यहाँ पे हम क्या एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पा रहे, तो इस तरह का जो सीरीज होगा ये क्या होगा, कंटिन्यूअस सीरीज। यानी इन द कंटिन्यूअस सीरीज डाटा कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजरेबल। यहाँ पे जो डाटा होगा ये एग्जैक्टली मेजर क्या होते हैं नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपको टाइप्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज। फर्स्ट हमने बताया इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, ये सीरीज जिसमें डाटा क्या होती है फाइनाइट होती है, यानी एग्जैक्टली मेजरेबल होता है, यानी कि हम इंडिविजुअल पता कर सकते हैं कि ये डाटा किसका है। दूसरे बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ये भी क्या होता है एग्जैक्टली मेजरेबल होता है, सेपरेट, यानी कि यहां पे हमने दिखाया था कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है और मार्क्स का जो एग्जांपल दिया था कि कितने स्टूडेंट कितने नंबर पाए, ये क्लियर है। थर्ड है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस सीरीज ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल। ये एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं होता है। यहां से हमने दिखाया कि ये कंटिन्यूअस, जैसे 0 to 10 फर्स्ट है, अब ये 10 से 20 यानी कंटिन्यूअस, यानी कि जो ये अपर टर्म लोअर टर्म अपर टर्म यहाँ पे बन गया लोअर टर्म, ये कंटिन्यूअस चल रहा है। अब इसके बीच 0 से 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं 0 से 10 के बीच जो नंबर मार्क्स मिला है 2 स्टूडेंट को, तो 2 स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले ये हम मेजर नहीं कर पाते। ये क्लियर है कि 0 से 10 के बीच ही है। तो इस तरह की सीरीज क्या हो गए कंटिन्यूअस सीरीज। तो ये था जो है आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।